السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین اور ناظرین اور سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا فرمایا، اس کو مسجود ملائکہ قرار دیا، گفتار و عقل سلیم وغیرہ و انعامات کرام سے انسان کو نوازا۔ ہر مخلوق پر بلندی و برتری انسان کو دے کر اپنی خلافت سے سرفراز فرمایا۔ آگ، ہوا، مٹی، پانی اور ہر مخلوق کو اس کی فرما برداری کر کے اس کو عارف و عالم اسماء ذات و صفات کا تاج پہنا کر خلافت عرضی کو اس کے سپرد کر دیا۔ آگ، ہوا، مٹی، پانی اور ہر مخلوق کو اس کی فرما بردار کر کے اس کو عارف و عالم اسماء ذات و صفات کا تاج پہنا کر خلافت عرضی کو اس کے سپرد کر دیا اور اس کو اشرف المخلوق کے لقب سے نوازا۔ مگر افسوس، صد افسوس، ساری مخلوق خدا کو اپنا مالک و خالق مان کر اس کے حکم کی برابر پیروی تو کر رہی ہے۔ ہر ایک مخلوق اور ہر ایک شے خدا کو احد و صمد اور لا شریک مان کر اس کو سجدہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، مگر اے اشرف المخلوقات ہے جو فضیلت و عظمت اور بلندی اور برتری اور بزرگی کے لحاظ سے ہر مخلوق پر غالب ہونے کے باوجود معبود و مسجود حقیقی سے روگردانی کر کے خود کو اور اپنے خالق اور مالک کو بھول کر کتے بلیوں کو، گھوڑوں خچروں کو، اونٹ اور ہاتھیوں کو، شیر اور باگھوں کو، گائے اور بیلوں کو، اینٹ اور پتھروں کو، خبروں اور عمارتوں کو، بتوں اور مندروں کو، ظالموں اور جابروں کو، پنڈتوں اور عاملوں کو اور ساحروں کو، مٹی، آگ، ہوا، پانی کو کے علاوہ ندیوں، سمندروں، پھول پتوں، درختوں کو، غرض یہ کہ کوئی خدا کو 3 کہہ رہا ہے، کوئی خدا کو 8 کہہ رہا ہے، کوئی خدا کو 4 کہہ رہا ہے، کوئی خدا کو 23 کہہ رہا ہے، کوئی خدا کو 3339 کہہ رہا ہے، کروڑوں کو کوئی اپنا مالک خدا کہہ رہا ہے اور اپنا مسجود اپنا معبود مان رہا ہے اور در بدر بھٹک رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے، قہر و عذاب الہی سے دوچار ہو رہا ہے۔ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے میرے دوستو؟ کر پہچانت آپ کی اور جان کی، ہو پہچانت پھر تجھے سبحان کی۔ محترم سامعین، اس کیوں کا جواب من عرف نفسہ فقد عرف ربہ ہے۔ یہ انسان ہے، آخر یہ انسان ہے، یہ اپنے نفس کو نہیں پہچانا، یہ اپنی جان کو نہیں جانا، یہ اپنی حیات کو نہیں بوجھا، یہ اپنی قدر و قیمت کو، یہ اپنے مقام اور مرتبے کو، یہ اپنے وقار اور معیار کو، یہ اپنے منصب خلافت کو اور عہدۂ نائبیت کو نہیں سمجھا، یہ خود اپنے آپ کو نہیں سمجھا دوستو۔ چنانچہ جن کا اے مسجود تھا وہ بھی شاید یہی کہہ رہے ہوں گے، ہائے رے انسان نائب رحمان خود سے کیوں ہو کر انجان در بدر پھر رہا ہے۔ نادان ذرا خود کو پہچان، ذرا خود کو پہچان، نحن اقرب ہے تیری شان، فی انفسکم افلا تبصرون ہے تیری شان، فینما تولوا فثم وجہ اللہ ہے تیری شان، واسجد واقترب ہے تیری شان۔ معزز حاضرین اکرام، اس مقام پر جبکہ خود شناسی کی بات چلی ہے تو میں ایک حکایت آپ لوگوں کو سناؤں تاکہ آپ کو اس حکایت سے کچھ ہدایت مل جائے۔ ایک احمقوں کی حکایت پیش کرتا چلوں
किसी गांव में 7 साथी रहते थे, मतलब 7 दोस्त रहते थे। उनकी नाकारा हरकतों और उनकी गैर ज़रूरी बातों और उनके बेजा कामों को देखकर हर फर्द उन्हें अहमकों के नाम से पुकारता था। एक दिन अहमकों ने बैठकर ये फैसला किया कि यहाँ कोई हमारी कदर नहीं करता, लिहाजा हमें गांव छोड़कर कहीं और जाना चाहिए। इतना सोचकर वो गांव छोड़कर किसी जंगल के रास्ते से निकल पड़े। इसी असना में बीच में उन्हें दरिया उबूर करना था। एक जोश मारता हुआ दरिया मिला। उनमें से 6 अहमक तैरना नहीं जानते थे और एक तैरने वाले ने कहा, मैं तैरना जानता हूँ, एक एक करके मेरा दामन थाम लो, मैं हर एक को दरिया के उस पार छोड़ दूंगा। उसका मशवरा मानकर सारे दरिया पार कर गए। उसके बाद उनके जहन में एक बात खटकने लगी और उन्हें वहम गुमान हो गया कि हम में से कोई दरिया में डूब गया है। एक अहमक ने कहा, चलो लाइन बांध कर खड़े हो जाओ, गिनती करके मालूम कर लेते हैं कि हम कितने साथी हैं। 6 अहमक लाइन बांधकर कतार में खड़े हो गए। एक गिनती करने लगा, 6 तक गिनता रहा और खुद अपने आप को छोड़ दिया। फिर दूसरे ने गिनती की, फिर उसने 6 तक गिनता रहा, फिर उसने भी अपने आप को छोड़ दिया। और जब इसी तरह सब ने गिनती की लेकिन अपने आप की गिनती नहीं की और खुद अपने आप को छोड़ दिया, तो उनको ये वहम हो गया कि हमारा एक साथी पानी में डूब गया है, वो दरिया में डूब गया है। वह चीखने और चिल्लाने लगे और सर और सीना पीट कर ज़ारो ख़तार रोने लगे। उसी वक्त वहां से एक आदमी का गुजर हुआ। उसने माजरा पूछा, भाई आप लोग क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी है, क्यों सीना पीट कर रो रहे हो? कहने लगे, हम लोगों में 6 आदमी को तैरना नहीं आता था, तो हमने ये मशवरा किया कि एक आदमी को तैरना आता है, सब उसका एक एक दामन पकड़कर उसके साथ दरिया पार करेंगे। हम सबों ने दरिया तो पार कर दिया लेकिन हमारा एक साथी पानी में डूब गया है। तो वो कहने लगा, चलो लाइन कतार बांधो, मैं गिनती करता हूँ। जब लाइन और कतार बांधी गई तो उस गिनने वाले ने गिना तो 7 आदमी बराबर थे। तो बात ये समझ में आती है कि जब हम किसी के दूसरों को ऐबों को देखते हैं, दूसरों की बुराइयों को तलाश करते हैं, तो अपने आप की बुराइयों को हम नहीं देखते और अपने आप को भूल जाते हैं। या अपने आप को भूल जाना है, भूल जाना ही खुदी से गफलत है। दोस्तों, ये घड़ी महशर की है तो अरसा महशर में है, पेश कर गाफिल अमल अगर तेरे दफ्तर में है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, इक़रा किताबुका कफ़ा बिनफ्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा। तू पढ़ अपनी किताब और कर ले अपने नफ्स का हिसाब, आज का दिन तेरा मुहाफिज तू ही काफ़ी है। अजीज दोस्तों, खुद से गाफिल होना, खुद की किताब ना पढ़ना, खुद का मुहासिबा ना करना, खुद को भूल जाना, खुद को पसे पुष्ट डाल देना, खुद को नजरअंदाज कर देना, ये सब क्या है? सबसे बड़ी गुमराही है। इन दिनों जब कहीं कोई जलजला आता है, तूफान और सैलाब आता है, कहर व अजाब इलाही नमूदार होता है, आसमानी व ज़मीनी कहर टूट पड़ता है, तो हम लोग अफसोस ज़रूर करते हैं। हर घड़ी ये कहने और सोचने में मुब्तला और मशगूल हो जाते हैं कि फ़ला मकाम पर अजाब इलाही आया है, तूफ़ान की शक्ल में नमूदार हुआ है, इतने लोगों की जानें चली गई और बहुत से माल व असबाब का नुकसान हो गया, फ़ला मकाम पर ज़लज़ला आ गया, फ़ला मकाम पर अजाब इलाही आ गया और बड़ी बड़ी इमारतें गिर गई और हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हुए, करोड़ों का नुकसान हुआ। इन जलजलों और तूफानों और सैलाब की खबर सुनकर बिला शबा हम कहते हैं वहाँ के लोग खुदा को भूल कर, गुमराह होकर किसी बुराई और बदकारी में मुब्तला हो गए थे। चुनांचे उन पर खुदा का कहर टूट पड़ा, मगर अफसोस हम उनके आमाल और अफ़आल और
गुफ्तार व किरदार को ज़रूर गिनते हैं और अपने आमाल और अफ़आल और किरदार का मुहासिबा नहीं करते। उन पर तरस खाना लाजिमी है। लोग उनके लिए चंदा इकट्ठा ज़रूर करते हैं, उनको राहत पहुंचाने के लिए सामान ज़रूर मुहैया करते हैं, मगर ये सोचने और समझने की कोशिश नहीं करते कि हमारे आमाल क्या हैं, हमारे अफ़आल कैसे हैं, हमारी गुफ्तार कैसी है, हमारा किरदार क्या है। हर लिहाज से हम खुद को खुदा के कहर व अजाब से महफूज समझते हैं। दोस्तों, तो अपने आप को महफूज समझना और अपने आप को सही समझना और दूसरों को गलत समझना और अपने आप को पाक और साफ जाहिर करना, दूसरों को बुरा जाहिर करना और अपने आप को नेक समझना, दूसरे को बुरा समझना, मोहतरम दोस्तों, यही तो वो गफलत है, यही तो वो खुदी की गफलत है, जो खुदी की मौत है। तो मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें दूसरों के आमाल देखने से पहले अपने आमाल बनाने और दूसरों की फिक्र करने से पहले अपनी ज़ात के लिए फ़िक्र करने वाला बनाए और हम सबको एक और नेक बनकर इस उम्मत मुस्लिमा का कुछ काम करने की तौफीक अता फरमाए। और जो दीन में तफर्रुक़ा पड़ गया है, उस तफर्रुक़े से दूर होकर राय हक़ पर हम गामज़न होकर हर हमेशा मुस्तकीम रहने की हम मेहनत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस मेहनत को कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। और आप लोग जो शौक़ से इस वीडियो को देखते हैं यूट्यूब पर, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया है। जो हजरात हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं उनसे इल्तमास करता हूं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो मालूमात हम आप तक पहुंचाते हैं उन मालूमात को सुनकर उस मालूमात को दूसरों तक फॉरवर्ड करें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।